trigonometry. Tri means 3, gono means an angle, and metry means measurement. So trigonometry is basically the measurement of the 3 angles of a three-sided polygon, which is a triangle. You have a triangle whose angles are known to you. Then you can resolve this triangle into known measurements in the form of known ratios of the sides in terms of the angles or in terms of specific functions of these angles known as trigonometric functions. We now study the various functions in terms of the angles of a triangle. Consider a right angle triangle OAB, right angle at angle A. We have the angle O as theta, so angle B would be 90 degrees minus theta. Now trigonometry has a very basic rule which says that for every angle theta or for any angle, the ratios of the sides of a triangle which forms that angle, for example OB, OA and AB, these are the 3 sides which contribute to this angle theta. Now these 3 sides, the ratios of these 3 sides would be constant for a constant value of theta. 6 basic ratios have been defined in trigonometry. We have, for any angle theta, we have the 6 basic ratios as sine of angle theta, cosine of angle theta, tangent of angle theta, cotangent, cosine and cosecant. Before studying these ratios, let us first study the basic structure of a right angle triangle. As you can see, this figure shows the basic structure of a right angle triangle. You have a right angle triangle OAB with a right angle at angle A. ऐसे आप देख सकते हैं, हमने इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाया है. आपका XY प्लेन है, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. हमने इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाया, जिसके कारण आपका X और Y दोनों पॉजिटिव है. तो हमारा B भी ग्रेटर देन 0 हो गया और हमारा P ग्रेटर देन 0 हो गया. पाइथागोरस थ्योरम हमको ये बताती है b square plus p square is equal to h square, where b is your base and p is your perpendicular, h is your hypotenuse. सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे, आपका बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा. सपोज आप कंसीडर कर रहे हैं एंगल थीटा जो है इस तरफ एंगल O. जो एक्सिस थीटा को और राइट एंगल ट्रायंगल को ज्वाइन कर रही है वो एक्सिस फॉर्म करती है आपका बेस, और the line which is perpendicular to base is known as your perpendicular. Now we define the 6 basic ratios in trigonometry. The first ratio is sine of angle theta, abbreviated as SIN. Sine of angle theta is defined as, this is the ratio of the perpendicular to the hypotenuse. So it will equal to P upon H. Next ratio is cosine of angle theta, abbreviated as cos of theta, COS theta. This is given to you by base upon hypotenuse. So these are the 2 extremely basic ratios in trigonometry, sine theta and cosine theta. All the other 4 ratios are derived from these 2 equations. That is derived. The ratio of sine theta to cos theta is known as tangent of angle theta, abbreviated as tan theta. So it will be given by perpendicular upon base. These 3 equations or these 3 ratios form the fundamental ratios of trigonometry. The inverse of these 3 ratios are the other 3 ratios. 1 upon sine theta is written as cosecant theta, abbreviated as cosec theta, COSEC, cosec theta, given by hypotenuse upon perpendicular. The reciprocal of cos theta, known as secant theta, abbreviated as SEC theta, sec theta, is given by hypotenuse upon base, and the reciprocal of tan theta, known as cotangent theta, represented by cot theta, is given by base upon perpendicular. So as you can see, 6 ratios have been decided in terms of the length of base, the length of perpendicular, and the length of hypotenuse in a right angle triangle. These 6 ratios form the fundamental ratios of trigonometry. Now we study the basic properties of these ratios, and we also see that these ratios remain constant for any value of theta. Now, as you can see in the figure, there are 2 right angle triangles, triangle OAB and triangle OCD. Both of them have a common vertex at O. So both of them have a common angle theta, 90 degrees and 90 minus theta. As you can see, these 2 triangles are similar triangles.
Now what we have to prove is the 6 trigonometric ratios are equal for the are same irrespective of what the theta is, in the sense that you have an angle theta. All these ratios will be same for a fixed angle theta. Let us see that. We have the first ratio sin theta given by length of perpendicular upon length of hypotenuse. Now for the triangle OAB, you have value of sin theta is equal to perpendicular, which is P, upon hypotenuse, which is H. Now for triangle OCD, you have the same ratio of sin theta, or let us say, okay, sin theta dash, in the sense assuming that this ratio is different for the triangle initially, perpendicular, which is P dash, upon hypotenuse, which is H dash. Now as you can see, these two triangles are similar triangles, plus CD is parallel to AB. You have a theorem known as the basic proportionality theorem for two parallel lines, stating that if you have three parallel lines, let us say there is a parallel line going through O, parallel to CD and AB. Now for these three parallel lines, you have a transversal OB. The transversal OB cuts the three parallel lines at O, D and B, also at O, C and A. Therefore, the basic proportionality theorem states that OD upon OB would be equal to OC upon OA. In that sense, you have H dash upon H is equal to B dash upon B. Similarly, you will have each of these equal to P dash upon P. I state again, the basic proportionality theorem states that for three or more parallel lines, if a transversal is passing through them, it cuts the intercepts in a proper or same ratio irrespective where the transversal is. Using this basic proportionality theorem, we see that 1 and 2 give equal results. You have sin theta is equal to sin of theta dash. This means what? This means that if your theta is same, your sine of that angle will remain the same irrespective what your perpendicular, what your hypotenuse is. The ratio of these two will remain same. Same case goes for your cos theta, which is your base upon hypotenuse. Now since sin theta and cos theta are same, as I had told you earlier, all the other four ratios which are derived from these two will also be. So let us work on the signs of these ratios in the four quadrants in the xy plane. यहाँ पे xy plane है. I am first working in the first quadrant. First quadrant में OA positive x-axis, so it will be positive. AB in the positive y direction, so it will again be positive. And OB के बारे में एक बहुत ही special चीज है. Since OB is given by under root of AB square plus OA square by Pythagoras theorem, OB basically represents the length of the hypotenuse. So this technically can never be negative. ये हमारा convention होगा trigonometry के अंदर. Trigonometry के अंदर there is a very strict convention followed that your hypotenuse is always taken to be positive irrespective of any sign of base or perpendicular. So you have B positive, P positive and H positive. So all the ratios, sin theta, cos theta, tan theta, everything would be positive. So we abbreviate this quadrant to be as A. A represents for all positive. Come to second quadrant. Now in the second quadrant, what you would have is same perpendicular would be reflected over here, so this would be positive. But your base would become negative because the base would now lie on the negative x-axis. Hypotenuse again remains positive as goes for the convention. So इससे हमें क्या पता लगता है? Sin theta जो रेशियो है perpendicular hypotenuse की, वो तो positive रहती है. Cos theta जो थी base और hypotenuse की रेशियो वो negative हो जाएगी because of base negative हो चुका है. So now cos theta is less than 0. इन दोनों की रेशियो tan theta will again be less than 0 because cos theta is less than 0. So what do we say in this quadrant? That only sin theta is given by a positive ratio. Therefore we abbreviate this quadrant as S, indicating that इस quadrant के अंदर सिर्फ sin theta ही positive रहेगा. Coming on to our third quadrant. Third quadrant में आप देखेंगे, अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल, आपका बेस भी नेगेटिव है बिकॉज वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और आपका परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है.
हाइपोटेन्यूज हमारे कन्वेंशन की वजह से हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों के नेगेटिव होने की वजह से आपका sin थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका cos थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर बेस दोनों ही नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल रेशियोज आर नेगेटिव एक्सेप्ट tan थीटा। सो वी abbreviate this quadrant as T, indicating कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा ही पॉजिटिव है। Coming on to our fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका बेस अगेन पॉजिटिव हो चुका है, बेस फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच चुका है, तो बेस पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन परपेंडिकुलर अभी भी नेगेटिव एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए परपेंडिकुलर नेगेटिव हो चुका है। परपेंडिकुलर नेगेटिव होने की वजह से आपका sin थीटा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो डेफिनेट सी बात है उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। Tan theta again being the ratio of these two will become negative. So in this quadrant ultimately cos theta is negative. हमने इसको एलिमिनेट किया C से। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में all positive, सेकंड क्वाड्रेंट में sin theta positive, थर्ड क्वाड्रेंट में tan positive और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos positive। इस चीज को याद करने का आपके पैकेज में बहुत ही अच्छा तरीका दे रखा है। It's an acronym given by after school to college। ये एक्रोनिम क्या बताता है? डेफिनेटली आप स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं तो इस एक्रोनिम को याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर देखिए A S T C। गो बाय द क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में S दैट मींस साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 दैट इज T पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज दैट इज C पॉजिटिव। इस एक्रोनिम की मदद से आप याद कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव। हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल is 90 डिग्री, सम ऑफ अदर टू हैज टू बी 90 डिग्रीज। therefore the two angles of right angle triangle which are not 90 degrees are called complementary angles। हमारे फिगर के अंदर वो एंगल्स हैं थीटा और अल्फा। So we have alpha plus theta is equal to 90 degrees. You have again OA equal to B, AB equal to P and OB equal to H. So हमारा sin theta क्या हो जाएगा? Perpendicular upon hypotenuse P over H. Cos theta हमारा होगा B over H base upon hypotenuse और tan theta हमारा होगा perpendicular upon base P by B। मैं अपने डिस्कशन में सिर्फ ये तीन रेशियोज ले रहा हूँ। The other three ratios are just inverse, तो आप उसको रेसिप्रोकल लेकर प्रूव कर सकते हैं। That is see the sin of angle alpha। Sin of angle alpha कैसे होगा? सबसे पहले डिसाइड कीजिए बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के अंदर आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था जो एंगल कंसिडरेशन के अंदर है उस एंगल को 90 से जॉइन करने वाली लाइन को आप बेस कहेंगे। तो आपका ए भी बन गया बेस फॉर एंगल अल्फा। उस लाइन के बेस के परपेंडिकुलर बनेगा आपका परपेंडिकुलर, सो इट विल बी OA विल बी योर परपेंडिकुलर, अगेन योर OB विल बी योर हाइपोटेन्यूज। सो आपका साइन ऑफ अल्फा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज OA अपॉन OB। OA कितना है आपका? B एंड OB इज H। आपका साइन ऑफ अल्फा हो गया B अपॉन H। ध्यान रखिए इसके अंदर P ओवर H है और इसके अंदर B ओवर H है, इसलिए बी वेरी केयरफुल अपॉन कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। cos अल्फा कैसे डिफाइन होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज है OB। AB कितना है आपका? P और OB है H। सिमिलरली tan अल्फा कितना होगा? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा व्हिच इज B ओवर B। ध्यान से नोटिस कीजिए ये दोनों रेशियोज। आपके पास है sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा। sin थीटा P by H है, cos अल्फा P by H है। ये जो रिलेशनशिप मैंने लिखा है थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्रीज, इससे आपका अल्फा निकल के आता है 90 डिग्रीज माइनस थीटा। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखिए तो आपके पास आएगा sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू cosine ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा।
सिमिलरली अगर आप यहाँ पे cos थीटा को इक्वेट करेंगे sin अल्फा से, तो आपके पास आएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा। और अगर आप tan थीटा को देखेंगे, tan अल्फा है b by b which is equal to 1 upon tan theta or cot theta. So you have tan of 90 degrees minus theta is equal to cot theta. इन तीन रिलेशनशिप को आप देखिए, ये आपको क्या बताते हैं? If you have an angle 90 degrees minus theta, उसका cos लेना है आपको, तो the best way is to take the sin of theta. These three relationships are known as the trigonometric for complementary angles. अगर आपको sin theta पता है, तो आप cos of 90 degrees minus theta निकाल सकते हैं। अगर आपको cos theta पता है, तो आप sin 90 minus theta निकाल सकते हैं। For example, let us say sin theta is given as a. Then what would be cos of 90 degrees minus theta? It will be a. एक और एग्जांपल, suppose cos of 72 degrees is given as k. Then what would be sin of 18 degrees? देखिए, sin 18 निकालना है, आपको cos 72 पता है, 72 को मैं लिख सकता हूँ 90 degrees minus 18. So this is equal to sin of 90 degrees minus 18 degrees. Now coming to the second property, sin 90 minus theta is given by cos theta. So this will be cos of 18 degrees. Cos of 18 degrees, sin 18 आपको निकालना है, cos 18 से आपको पता लग जाएगा। हम इससे पता लगाएंगे बाद में कैसे आप निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन cos 18 एंड cos 72। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए। आपके पैकेज में एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 4 पे, जिसके अंदर फंडामेंटल एंगल्स दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 30 और मैक्सिमम 15 की बेसिक ज्योमेट्रिक रेशियोज दे रखी है। मैं उनमें से आपको दो रेशियोज समझाता हूँ, साइन और कॉस, बाकी चार से डिराइव हो सकते हैं। लेट अस टेक थीटा टू बी 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। हम निकालेंगे साइन थीटा और हम निकालेंगे कॉस थीटा। जब थीटा 0 डिग्रीज है, देखिए आपका OB जो है वो OA से कोइंसाइड कर जाएगा और आपका AB 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा? AB 0 means perpendicular is 0. Sin theta is 0 because perpendicular becomes 0, but you still have a finite value of hypotenuse, which is equal to base. तो 0 डिग्री के एंगल के अंदर क्या होगा आपका? Perpendicular 0 and base equal to hypotenuse, which is not equal to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप रेशियो ले सकते हैं। तो sin थीटा कितना हो गया आपका? 0. Again, come to cos theta. Cos theta कितना आएगा आपका इस केस के अंदर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों बराबर है और नॉन जीरो है, तो ये हो जाएगा। Now come to the next case which is 30 degrees. 30 degrees के अंदर नॉर्मल होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस के अंदर साइन की स्पेशल वैल्यू होती है which is 1/2, half. The sin of 30 degrees is given as half. That means your perpendicular is exact half of your hypotenuse. For 45 degrees आपका बेस और आपका परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा, तो हम रेशियो निकालते हैं, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। एंगल जो है 45 डिग्रीज, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, p square plus p square is equal to h square. Since b equal to p, so b is equal to p is equal to h over root 2. तो आपका p over h कितना आ जाएगा? sin थीटा 1 over root 2. Therefore sin of 45 degrees is given by 1 over root 2. आप देख सकते हैं b h कुछ भी हो, p कुछ भी हो, b कुछ भी हो, the ratio p by h is a constant. जो मैंने पहले कहा था वो प्रूव हो चुका है। sin of 60 degrees will be root of 3 by 2. And sin of 90 degrees देखिए, 90 डिग्री के केस में क्या होगा? थीटा will be 90 degrees. Base will converge to 0. So your base is 0 and your hypotenuse is now equal to perpendicular. तो आपका sin कितना हो जाएगा? Perpendicular hypotenuse which is 1. अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, sin of 90 degrees minus theta is equal to cos theta. ये प्रॉपर्टी देखिए, थीटा पे 0 डिग्री है
तो जाएगा आपका sin of 90 डिग्रीज इज इक्वल टू cos of 0 डिग्रीज, बिकॉज थीटा 0 है, वो यहाँ पे हो रहा है sin 90 डिग्रीज इज इक्वल टू cos of 0, दोनों है 1। अब रखिए थीटा 30 डिग्रीज, so sin of 90 minus 30 which is 60, so sin of 60 is equal to cos of 30 degrees, so sin 60 कितना है √3/2, so cos 30 कितना होगा √3/2। अब रखिए 45 डिग्रीज, तो आपका cos कितना आ जाएगा 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर आपको साइन वैल्यूज पता है तो cos वैल्यूज आपने निकाल ली है, tan निकालने के लिए दोनों में डिवाइड कीजिए और फिर रेसिप्रोकल रेशियोस ले लीजिए। These are the very 5 fundamental angles in trigonometry। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप इनको एनकाउंटर करेंगे और इसलिए ये जो आपके रेशियोज हैं इनको बेटर रहेगा आप लर्न करें। तो हम डिराइव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। बेसिक बेसिस डिराइव करेंगे b² + p² = x²। आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम, डिवाइड कीजिए ओवरऑल x² से, आपका जाएगा b² + x² + p² = 1। b/h is given as sin of theta, cos of theta, base अपन hypotenuse is cos of theta, so उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा cos of square theta। p/h is sin theta, so you have sin square theta is equal to 1। First and the most important property in trigonometry, आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसी का यूज पढ़ने वाला है, sin square theta plus cos square theta equal to 1। This is a very important property, 2 पॉइंट्स की वजह से। First, irrespective what your theta is, the sum of the squares of its sine and cosine is 1, and second is this is applicable for any theta। आपका ट्रायंगल राइट एंगल हो ना हो, बिकॉज इसमें कहीं भी आपकी परपेंडिकुलर बेस की बात नहीं आ रही है, इसलिए दिस इज वैलिड फॉर एनी थीटा। इफ यू नो sin थीटा यू कैन फाइंड आउट cos थीटा। कैसे? मैंने आपको पहले एग्जांपल करवाया था, cos of 72 डिग्रीज है अगर आपके पास k, तो आपको निकालना था sin of 18 डिग्रीज। अब इस एग्जांपल को हम पूरा करते हैं। sin of 18 डिग्रीज को मैं लिख सकता था जैसे पहले लिखा था, sin of 90 डिग्रीज minus 18 डिग्रीज। यूजिंग sin 90 minus theta is equal to cos theta, ये आपका हो जाएगा cos of 18 डिग्रीज के बराबर, सॉरी sin of 90 डिग्रीज minus 72 डिग्रीज हो जाएगा आपका cos of 72 डिग्रीज के बराबर, which is k। अगर हमें निकालना है sin of 72 डिग्रीज, तो sin 72 डिग्रीज में कैसे निकालेगा? आपको cos 72 पता है k, sin 72 निकालेंगे इस आइडेंटिटी से, k² plus sin square 72 degrees equal to 1। So you have sin square 72 degrees is equal to 1 minus k²। So you have sin of 72 degrees is equal to plus minus √1 minus k²। अब प्लस या माइनस, देखिए 72 डिग्रीज लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम नेगेटिव का नेगलेक्ट कर देंगे और आएगा sin of 72 डिग्रीज इज इक्वल टू √1 minus k²। तो आपने ये देखा कि अगर आपको cos 72 पता है, आप sin 72 आराम से निकाल सकते हैं। cos 72 पता है, sin 18 निकालना है जो आप आराम से निकाल सकते हैं, which is equal to your k only। इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी से 2 और प्रॉपर्टीज ड्राइव होती हैं, उनका प्रूफ भी बहुत सिमिलर है, आपके पैकेज में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। tan square theta plus 1 is equal to secant square theta and cot square theta plus 1 is equal to cosecant square theta। These 3 properties form the 3 very basic pillars of trigonometry। सबसे ज्यादा एनकाउंटर आप करेंगे इन 3 प्रॉपर्टीज को। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर IIT कोर्स में या किसी भी मैथमेटिकल कोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? बिकॉज इसकी एप्लीकेशंस हर चैप्टर के अंदर, आप कॉम्प्लेक्स नंबर करें, कैलकुलस करें, कुछ भी करें, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री का बहुत एक्सटेंसिव यूज है। सो आई वुड रेकमेंड कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपके पैकेज है इलस्ट्रेशन 2, आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की 1 + cot a - cosec a
multiplied by 1 plus tan A plus sec A for any angle A। ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके का जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले ये नोटिस कीजिए कि क्या आप इनको बेसिक कन्वर्जन्स करके सबको साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। बिकॉज सारी रेशियोज जैसे मैंने तो पहले बताया था साइन और कॉस में कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहले हम वो करके देखते हैं। कॉट हमने पढ़ा था 1/tan जो था sin अपॉन cos, तो कॉट हो गया मेरे पास cos अपॉन sin, दिस बिकम्स 1 प्लस cos A अपॉन sin A माइनस cos A cos इनवर्स ऑफ sin, सो 1 अपॉन sin A मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan A was cos sin A upon cos A and sec A was reciprocal of cos which is 1 upon cos। आप देख सकते हैं कि हर एक ब्रैकेट के अंदर आपका डिनोमिनेटर कांस्टेंट आ रहा है। न्यूमरेटर अगर देखें तो आपका आएगा 1 प्लस cos A माइनस sin A एंड 1 प्लस sin A माइनस cos A। इसमें आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं sin और cos की टर्म्स में तो आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई हो रहा है, इसलिए ये अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सही है। प्रोसीड करते हैं आगे। ये हो जाएगा sin A और न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस cos A cos A माइनस 1 प्लस sin A, और यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस sin A प्लस cos A, डिनोमिनेटर में आपका आएगा cos A। देखिए दोनों तरफ sin A प्लस cos A सेम है, प्लस माइनस 1 का डिफरेंस है, so it's A plus B into A minus B form where A is sin A plus cos A and B is 1, तो हो जाएगा A square minus B square which is sin A plus cos A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sin A cos A, होल स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A माइनस 1 अपॉन sin A cos A। अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये वाला 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा 2 sin A cos A अपॉन sin A cos A, sin A cos A से sin A cos A काटा, आपका फाइनल आंसर आ गया 2। So this expression evaluates to be 2। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट की। पहली नोट की थी कि हम कभी भी क्वेश्चन के अंदर ट्रू प्रूफ अगर है सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या वो sin cos में कन्वर्ट करके सिंपलीफाई हो रहा है, और सेकंड यूज ऑफ आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर या फिर आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हमको या तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A वाली फॉर्म मिलती है या फिर हमको 1 को रिप्लेस करना पड़ता है इस फॉर्म से। हम दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे एज एंड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। आपकी पैकेज का एक और एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 5। आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n। आपको दोनों में से थीटा एलिमिनेट करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि since these two equations are in only one variable that is theta, आपको और तो कोई वेरिएबल नहीं है, m भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरिएबल है, तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके थीटा को एलिमिनेट करना है। वैसे तो थीटा एलिमिनेट किसी एक इक्वेशन से भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए आपको दो कंडीशंस दे रखी है, इन दोनों को यूज करके आपको सिंगल वेरिएबल एलिमिनेट करना है। हमारे पास तीन बेसिक आइडेंटिटीज थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। इन तीनों को यूज करके हम थीटा एलिमिनेट करेंगे। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर sin थीटा है, cos थीटा है, cosecant थीटा इज 1 by sin थीटा एंड secant थीटा which is 1 by cos थीटा। सो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करूं तो इससे मुझे कुछ फायदा होगा? हाँ होगा, लेट अस सी क्या होगा। सबसे पहले मैं इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं। ऊपर की इक्वेशन नंबर 1, नीचे इक्वेशन नंबर 2। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 over sin थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, और 2 को मैं लिख सकता हूं 1 over cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n।
इस चीज से हमको क्या फायदा होगा, इसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 को स्क्वायर करेंगे 2 को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया m फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा हो गया m फ्रॉम इक्वेशन 2। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो आपका आया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू m, नीचे सिमिलरली आ रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू n। आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आया sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू mn, which implies tan theta equal to mn। वन इक्वेशन, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू m by n एंड cos थीटा बाय sin थीटा बीइंग cot थीटा, ये आपका हो जाएगा cot क्यूब थीटा इज इक्वल टू m by n। तो आपका cot थीटा कितना आ गया, m by n की पावर 1 by 3। एक चीज नोटिस करने की बात है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, सिंस ये दोनों इक्वेशन सेम वेरिएबल थीटा के अंदर है और हर एक इक्वेशन से थीटा इंडिपेंडेंटली निकाला जा सकता है, इसका मतलब m हैज टू बी डिपेंडिंग ऑन n, इसका मतलब m और n रिलेटेड है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि m और n में रिलेशनशिप निकालिए तो आप निकाल सकते थे cos थीटा tan थीटा से। इस क्वेश्चन में हम ये अप्रोच यूज करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं, cot थीटा इनटू tan थीटा इज 1, तो आपका हो जाएगा आपका m by n का 1 by 3 इनटू mn इक्वल टू 1। इससे आपका देखिए क्या आता है, n की पावर 4 by 3 n की पावर 2 by 3 इक्वल टू 1, m square n इक्वल टू 1। This is also one of the valid relationships। इस एग्जाम्पल में इन दोनों स्टेप्स के बाद cos थीटा अपॉन sin इक्वल टू n और sin स्क्वायर अपॉन cos इक्वल टू n के बाद जो भी बोला वो हटा देना। इस एग्जाम्पल को इसके बाद दोबारा सॉल्व कर लो। तो हमने देखा कि दो हमको इक्वेशंस मिलती हैं, cos स्क्वायर अपॉन sin इक्वल टू m और sin स्क्वायर अपॉन cos इक्वल टू n। फर्स्ट इक्वेशन से आप sin थीटा निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, आपको मिलता है sin थीटा इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये रिलेशनशिप डाली सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो आपको मिलता है sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इस इक्वेशन से cos पावर 4 थीटा अपॉन m स्क्वायर अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू n। तो आपको इससे मिलता है cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर n या फिर cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर n टू द पावर 1 by 3। सिमिलरली आपको sin थीटा मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज या फिर इससे निकालिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए। सेकेंड इक्वेशन से cos थीटा निकालिए व्हिच इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन n और इसको फर्स्ट में डाल दीजिए, तो आपको sin थीटा मिल जाएगा mn स्क्वायर की पावर 1 by 3। डाउट यहाँ पे यह आता है मैं इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 कि sin थीटा को इन दोनों से निकालूं। इसका जवाब यही है, एक इक्वेशन आपका रिलेशनशिप निकालेगी और एक इक्वेशन आंसर निकालेगी। कहने का क्या मतलब है, अगर आप पहली इक्वेशन यूज करते हैं sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो आपका sin थीटा और mn के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। अब sin थीटा को अब mn आपका फिर भी थीटा के टर्म्स में ही रहेगा, एलिमिनेट थीटा यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप 1 और 2 यूज करते हैं sin थीटा निकालते हैं तो इससे आपका जो रिलेशनशिप आया है व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ cos थीटा, और फिर रिलेशनशिप यूज करके आप थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, आपने cos थीटा इंडिपेंडेंटली निकाला है, sin थीटा इंडिपेंडेंटली निकाला है, अब ये आइडेंटिटी यूज करके इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए।
That is sin square theta plus cos square is 1. So you have mn square की power 2 by 3 plus m square n की power 2 by 3 is equal to 1. ये रिलेशनशिप आ गया है आपका m n के बीच में. इस इक्वेशन के बीच में थीटा नहीं है, इसलिए आपने इन दोनों इक्वेशन यूज करके थीटा एलिमिनेट कर दिया टू फॉर्म दिस इक्वेशन. ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती है. क्या बताती है? सिंस ये दोनों इक्वेशंस आपकी सेम वेरिएबल के अंदर थी, थीटा के अंदर थी, और किसी भी इक्वेशन से थीटा इंडिपेंडेंटली निकाला जा सकता था, इसलिए m has to be dependent on n in some way. That is, if you know m, you should be able to find n. क्यों? क्योंकि अगर आपको m पता है तो आप थीटा निकाल सकते हो इक्वेशन 1 से. थीटा पता है तो इक्वेशन 2 का LHS निकाल सकते हो, और LHS पता है तो RHS जो है n वो निकल जाएगा. इसलिए अगर आपको m पता है तो n पता लग जाना चाहिए. क्वेश्चन से पता नहीं लग रहा है कि कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में से थीटा एलिमिनेट करने पे ये पता लग सकता है. जेई के अंदर यही क्वेश्चन कितनी भी फॉर्म्स में आ सकता है. आपको m दे देंगे, n निकालना होगा, तो इंस्टेड कि आप पूरा थीटा के लिए सॉल्व करें, इस इक्वेशन पे आइए और n आराम से आपका निकल जाएगा. इस एग्जांपल के बारे में एक और चीज कहना चाहूंगा. कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन का, जहां पे आपको कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो कोशिश कीजिए उनको इन तीन आइडेंटिटीज में से किसी फॉर्म में ले आइए, बिकॉज ये तीन आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटीज हैं. हर एक न्यूमेरिक रेशियो को साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर साइन और कॉस के रिलेशनशिप पता होने के कारण हम थीटा आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. अब हम आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में कॉन्सेप्ट पे, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. रेंज का मतलब है, can these ratios attain any possible real value? The answer is no. Consider sin theta. Sin theta आपकी रेशियो होती है perpendicular upon hypotenuse. पाइथागोरस रिलेशनशिप देखिए, p square plus b square is equal to h square. आपका p square is always a positive real number, b square is again always a positive real number, so is h square. पॉजिटिव रियल के अंदर पॉजिटिव रियल आपको मिल रहा है एक और पॉजिटिव रियल. इसका मतलब h square has to be greater than both p square and b square, because p और b दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है. कंसीडरिंग एंगल्स हमारे 0 और 90 डिग्री नहीं है. इसका क्या मतलब है? आपका h जो है वो p से बड़ा है और h आपका b से बड़ा है. ऑब्वियसली मॉडुलस कंसीडरिंग द फोर क्वाड्रेंट्स. इन दोनों क्वेश्चंस से आपको क्या पता लगता है कि आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटे होंगे. इसका मतलब sin थीटा जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो हमेशा 1 से छोटा. सिमिलरली cos थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो भी हमेशा 1 से छोटा होगा, बिकॉज़ b इज ऑलवेज लेस देन h. 1 कब होगा sin थीटा? जब हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, या फिर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. सो बेसिकली sin थीटा इज less than equal to 1, and so is your cos theta. Now go on to your second quadrant. Second quadrant में क्या था? sin theta पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे. तो नेगेटिव में रेशियो कितनी नेगेटिव हो सकती है? अगेन sin theta पॉजिटिव रहेगा, लेकिन cos theta जो -b/h हो जाएगा. अगेन b आपका मॉडुलस में तो h से छोटा ही रहेगा, कभी भी बेस हाइपोटेन्यूज से लेंथ वाइज बड़ा नहीं हो सकता. इसलिए आपका cos theta will be always greater than equal to -1. सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट एनालिसिस से पता लगता है कि sin थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. इसलिए आपकी sin थीटा और cos थीटा की फाइनल रेंजेस आ रही है -1 से +1. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिए कि sin थीटा और cos थीटा हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करते हैं, और कोई रियल वैल्यू ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अब आते हैं इनका रेशियो tan थीटा. tan theta is sin theta upon cos theta. tan theta एक बहुत ही स्पेशल रेशियो क्यों है? Because this can attain any real value. आपका परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है. These are independent of each other. अगर हाइपोटेन्यूज को हम कांस्टेंट ना माने तो परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. परपेंडिकुलर बेस का 10 टाइम्स भी हो सकता है, इसका हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, √2 टाइम्स भी हो सकता है. इसलिए आपका tan थीटा जो रेशियो है sin और cos की, कंसीडरिंग नेगेटिव साइन आल्सो, ये लाई करती है -∞ से लेकर इंफिनिटी के बीच में. इंफिनिटी कब होगी? जब आपका cos थीटा 0, दैट इज
थीटा इज गिवन बाय 90 डिग्रीज। जीरो कब होगी? जब sin थीटा 0 होगा, दैट इज थीटा इज 0 डिग्रीज। एंड माइनस इंफिनिटी कब होगी? जब cos थीटा इज नेगेटिव इंफिनिटी व्हिच इज -π/2 -90 डिग्रीज। इसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पैकेज का इलस्ट्रेशन नंबर 6। आपको एक जनरल एंगल थीटा और दो वेरिएबल्स हैं x और y का रिलेशन दे रखा है कि secant स्क्वायर थीटा इज गिवन बाय 4xy अपॉन x + y होल स्क्वायर। आपको ये इंस्पेक्ट करना है कि x एंड y की किन-किन वैल्यूज के लिए ये रिलेशनशिप होल्ड कर सकता है। क्वेश्चन का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है क्या हर वैल्यू ऑफ x और y के लिए आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? पहले बात। दूसरी बात, अगर परफेक्ट स्क्वायर मिलता है तो क्या वो किसी एंगल का सीकेंट रिप्रेजेंट कर